ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପେଡାଗୋଜିର ଏମିତି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତା'ର ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ସଂସ୍କୃତିରେ କ'ଣ କହିବା। ତାହା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ସଂସ୍କୃତର, ଯେମିତିକି SSB DGT ଗତ 2024ରେ ପ୍ରାୟ 5ରୁ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ RSTରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଛି, LTRରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ସେହି ପେଡାଗୋଜିର ପରିଭାଷା କ'ଣ ହେବ, ତା'ର ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁନିଟ୍ ଟାଇଟଲ୍। ୟୁନିଟ୍ ଟାଇଟଲ୍ର ଅର୍ଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶୀର୍ଷକ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ର ହେବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ର ହେବ ଉପବିଭାଗ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ର ହେବ ବିଷୟ ବିଭାଗ ବା ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ, ଆକ୍ଟିଭିଟିର ହେବ ତବ କୃତେ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ବା କାର୍ଯ୍ୟମ୍, ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ର ଅର୍ଥ ସଂରଚନା, ଗ୍ଲୋଜାରୀର ଅର୍ଥ ପରିଭାଷା, ସେଲ୍ଫ ଚେକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ, ସମାରୀର ଅର୍ଥ ସାରାଂଶ, ଆନ୍ସର୍ ଟୁ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତରୀ ସହ, ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅର୍ଥ ଦେବାନ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅର୍ଥ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା, ରେଫରେନ୍ସ ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର ରିଡିଂର ଅର୍ଥ ଅତିରିକ୍ତ ପୁସ୍ତକାଣୀ, ପଏଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ସଂକେତ ଦଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ର ଅର୍ଥ ଉପକ୍ରମ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ର ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ର ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥନ, ଜେନେରାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ର ଅର୍ଥ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସର ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଉପକରଣାଣି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜର ଅର୍ଥ ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ, ହାଇ ପିଚ୍ ଭଏସ୍ର ଅର୍ଥ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସ୍ୱର, ପ୍ରୋଲୋଗର ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଆଇଡିଆଲ ରିଡିଂର ଅର୍ଥ ଆଦର୍ଶ ବାଚନ, ଲୋଡ୍ ରିଡିଂ ଅର୍ଥ ଅନୁପାଠ, କରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡର ଅର୍ଥ ଅଶୁଦ୍ଧି ସଂଶୋଧନ, ରିମୁଭ୍ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅର୍ଥ କାଠିନ୍ୟ ନିବାରଣ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପ୍ତି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପ୍ତି, ଆଡଭର୍ବର ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅର୍ଥ ଅନୁବାଦ, ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପସନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନୁକୃତି, ଏମ୍ ଅଫ୍ ସଂସ୍କୃତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅର୍ଥ ସଂସ୍କୃତ ପଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। এটা CABE সেন্ট্রাল, এটা আসেনি, CABE সেন্ট্রাল আডভাইজরি বোর্ড অফ এজুকেশন, তার অর্থ কেন্দ্রীয় শিক্ষা আয়োগ হব CABE, সর্টকট কହୁছি। নেক্সট যা, এটা দেখুন, এটা গোটে রিট মিস্টেক সেন্ট্রাল আডভাইজরি বোর্ড অফ এজুকেশন অর্থ কেন্দ্রীয় শিক্ষা আয়োগ, এজুকেশন কমিশন অর্থ এজুকেশন কমিশন শিক্ষা আয়োগ, কগ্নিটিভ এমর অর্থ জ্ঞানাত্মক লক্ষণ, আফেক্টিভর এম অর্থ ভাবাত্মক লক্ষণ, কোনাটিভ বা স্কিল এম অর্থ কৌশলাত্মক লক্ষণ। তারপরে হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ সেলফ লর্নিং ম্যাটেরিয়ালর অর্থ স্বশিক্ষণ সামগ্রী, সেলফ এক্সপ্লানেটরি অর্থ স্বয়ং ব্যাখ্যান, সেলফ কন্টেন্ট অর্থ স্বয়ং পূর্ণ, সেলফ ডাইরেক্টেড অর্থ স্বয়ং নির্দেশক। তারপরে যা, সেলফ মোটিভেটিং অর্থ স্বয়ং প্রেরণা, সেলফ এভালুয়েশন অর্থ স্বয়ং মূল্যাঙ্কন, সেলফ লর্নিং অর্থ স্বয়ং শিক্ষণ, স্পিকিং স্কিল অর্থ ভাষণ কৌশল, রিডিং স্কিল এবং স্কেল অর্থ পঠন কৌশল, মুভমেন্ট অর্থ গতি, ফিক্সাটেশন অর্থ স্মৃতি, বহুত ইম্পর্টাট, ফিক্সাটেশন স্মৃতি, রিগ্রেসিভ অর্থ পশ্চাৎ গতি, সাউন্ড রিডিং অর্থ মুখরতা পঠন বা স্বস্বর পঠন, সাউন্ড রিডিং কু মুখরতা পঠন মধ্যে কুহযায় এবং স্বস্বর পঠন কুহযায়। রাহিমস রিডিং অর্থ, রাহিম অর্থ লয়যুক্ত, এবার রিডিং রহব, রাহিম রিডিং অর্থ লয়যুক্ত পঠন, ওরাল রিডিং অর্থ মৌখিক পঠন, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড রিডিং অর্থ আক্ষরিক পঠন, হোম রিডিং অর্থ গৃহ পঠন। নেক্সট কু যা, সাইলেন্ট রিডিং অর্থ মৌন পঠন করা, এক মিনিট, সাইলেন্ট রিডিং অর্থ মৌন পঠন, মেকানিক্যাল রিডিং অর্থ যন্ত্রবৎ পঠন, সব ভোকাল রিডিং অর্থ অবগত পঠন, মিনিংফুল রিডিং অর্থ ভাবগ্রহণীয়তা পঠন। নেক্সট কোশ্চেন কু যা, ইন্টেনসিভ রিডিং অর্থ
गहन पठन। डेभलपमेंटाल रिडिंग अर्थ विकासार्थक पठन। रेफरेंस रिडिंग अर्थ संदर्भ पठन। डिस्क्रिप्टिव रिडिंग अर्थ विस्तृत पठन। बासाल रिडिंग अर्थ आधारित पठन। रिफ्लेक्टिव रिडिंग अर्थ विमर्शात्मक पठन। रेट ऑफ रिडिंग अर्थ पठन गति। फिंगर रिडिंग अर्थ मंद पठन। रिमेडियल रिडिंग अर्थ सामान्य पठन। फ्री रिडिंग अर्थ द्रुत पठन। देखो रिमेडियल अर्थ सामान्य पठन जाउची एवं फ्री रिडिंग अर्थ द्रुत पठन। फ्री रिडिंग द्रुत बहुत मान गुड़िक ये टर्म गुड़ाक वर्ड गुड़ाक फ्री रिडिंग द्रुत पठन। इंटेंसिव रिडिंग गंभीर पठन। तो इंटेंसिव रिडिंग गंभीर पठन। ट्रांसक्रिप्शन अनुलेख। ट्रांसक्रिप्शन को अनुलेख कहा जाए। पैराग्राफ राइटिंग को कहा जाए प्रतिलेख। डिक्टेशन श्रुतलेख। डिक्टेशन अर्थ श्रुतलेख। कंपोजिशन रचना लेख। चारिटी लेख मध्य अच्छी अनुलेख प्रतिलेख श्रुतलेख। चार्टा लेख एमती प्रश्न पड़ी था देखो बहुत इंपोर्टाट। जेरक्स अर्थ प्रतिलिपि। मार्जिन अर्थ रिक्त स्थान। ओलार एसेल अर्थ मौखिक प्रबंध। रिटेन एसेल अर्थ लिखित प्रबंध। फ्री कन्वर्सेशन अर्थ मुक्त कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्यूरियस कन्वर्सेशन कौतूहल कथन देखो। क्यूरियस कन्वर्सेशन कौतूहल कथन। इमोशनल कन्वर्सेशन अर्थ व्यंग्यात्मक कथन। नरेशन अर्थ वर्णना। सेंटेंस एक्सपेंशन वाक्य संप्रसारण। तेणु वाक्य को संप्रासन को सेंटेंस एक्सप्रेशन कहा जाए। डायलॉग जोटा कि संलाप दि जाए संलाप जानिछु। फंक्शनल ग्रामर देखो फंक्शनल ग्रामर को व्यवहारिक व्याकरण कहा जाए। जोटा कि व्यवहार कर जो व्याकरण को ताकू फंक्शनल ग्रामर कहा जाए। फॉर्मल को तात्विक व्याकरण कहा जाए। फॉर्मलटा को तात्विक और फंक्शनल को व्यवहारिक। स्टोरी टेलिंग कथा कथन स्टोरी टेलिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रामर व्याकरण पठन उद्देश्य कौन आम ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रामर रिडिंग भी कह व्याकरण पठन उद्देश्य। ट्रेडिशनल मेथड पारंपरिक पद्धति देखो ट्रेडिशन जोटा कि पुराना पद्धति जोटा चली ट्रेडिशनल पद्धति पारंपरिक पद्धति कहा जाए। टेक्स्टबुक मेथड टेक्स्टबुक पाठ्यपुस्तक प्रणाली। इंडक्टिव मेथड आरोह प्रणाली। इंडक्टिव मेथड को आरोह प्रणाली कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट वर्ड को देखो डेडक्टिव मेथड हूँ अवरोह। इंडक्टिव हूँ आरोह प्रणाली और डेडक्टिव मेथड अर्थ अवरोह प्रणाली। प्रोजेक्ट मेथड अर्थ परियोजना प्रणाली। तापर ह्यूरिस्टिक मेथड को ह्यूरिस्टिक प्रणाली कहा जाए। डायरेक्ट लैंग्वेज मेथड को भाषा संसर्ग प्रणाली भाषा संसर्ग प्रणाली कहा जाए। तापर अच्छी ट्रांसलेशन को जानी अनुवाद पद्धति कहा जाए। ग्रामर बेस्ड टीचिंग ग्रामर को आधारित पठन जोटा कि व्याकरण धारित पाठ कहा जाए। प्रैक्टिस जानी अभ्यास। ट्रांसलेशन फ्रॉम संस्कृत टू मदर टंग अर्थ संस्कृत मातृभाषा प्रति अनुवाद। संस्कृत मातृभाषा को अनुवाद जोटा कि ट्रांसलेशन फ्रॉम संस्कृत टू मदर टंग। डिमेरिट्स देखो डिमेरिट्स दशा को डिमेरिट्स दश जोटा। प्रिपेरेशन प्रस्तुति जानी प्रेजेंटेशन उपस्थापना को उपस्थापना कहा जाए। तापर देखिबा तापर अछि कंपैरिजन तुलना करिबा जन को तुलना को कंपैरिजन कहा जाए। नेक्स्ट अछि आसिमिलेशन आत्मीकरण। एप्लिकेशन अर्थ प्रयोग तापर एप्लिकेशन को प्रयोग कहा जाए। तापर अछि इंट्रोडक्टरी स्टेज अर्थ उपक्रम सोपान। उपक्रम सोपान। प्रेजेंटेशन स्टेज उपस्थापन सोपान। प्रेजेंटेशन स्टेज को उपस्थापन सोपान कहा जाए। तापर अछि एप्लिकेशन स्टेज को प्रयोग सोपान कहा जाए। तापर अछि डायरेक्ट मेथड को प्रत्यक्ष पद्धति कहा जाए। तापर अछि इनडायरेक्ट मेथड परोक्ष पद्धति।
तापर इंडक्टिव मेथड आरोह पद्धति, तापर डेडक्टिव मेथड अवरोह पद्धति एबे पढ़िदिला। फ्रज ऑर्डर मेथड बहुत इंपोर्टेंट। फ्रज ऑर्डर मेथड अन्य पद्धति कहा जाए संस्कृति रे को पद्धति एति मध्ये खाली देखा जाए एई फ्रज ऑर्डर मेथडटा बा अन्य पद्धति खाली संस्कृति रे देखा दे। जो फ्रज ऑर्डर मेथड को अन्य पद्धति संस्कृति रे अन्य पद्धति जाहाको इंग्लिश रे फ्रज ऑर्डर मेथड कहा जाए। नेक्स्ट और अछि डायरेक्ट फ्रज ऑर्डर मेथड, तापर अछि डायरेक्ट फ्रज ऑर्डर मेथड दंडान पद्धति। तेनु दंडान पद्धति डायरेक्ट फ्रज ऑर्डर मेथड कहा जाए। तापर अछि इनडायरेक्ट फ्रज ऑर्डर मेथड, तापर इनडायरेक्ट फ्रज ऑर्डर मेथड को खंडान्वय पद्धति कहा जाए। तेणु डायरेक्ट फ्रज ऑर्डर मेथड को दंडान्वय कहा जाए, बोले इनडायरेक्ट फ्रज ऑर्डर मेथड को आमे खंडान्वय पद्धति कहा जाए। देखंतु आज आमे संस्कृत रो वर्ड गुडा को जानिला जोटा कि इंग्लिश रे ताहू कोन कहा जाए बा इंग्लिश वर्ड को संस्कृत रे कोन कहा जाए ता जानिला। या निहाती बहुत इंपोर्टेंट, एथि मध्यरो निहाती 4-5 मार्क बारंबार पड़ुसी। तेणु निहाती वर्ड को आमे मन रखा पड़ो, जमीती हेले ई वर्डटा गोटे मार्क निर्धारण करिबो। तेणु 4-5 मार्क तो गत एसएसबी टीजीटी पड़ी थी। तेणु यही वर्ड को सीधा आम मन में घुषिया पड़ो। बेले बेले कौन हुए ना यही वर्डटा कहीं यूज होची, मनकर पाठ शेष बा पूर्व ज्ञान परीक्षा को पद्धति कहुए कौटा पढ़ा कौटा देखा जाए ना उपक्रम पूर्व ज्ञान परीक्षा कहुए ताकू इंग्लिश वर्ड दी पूर्व परीक्षा रे पूर्व ज्ञान परीक्षा कौन यूज हुए तो उपक्रम कौन कहुए उपक्रम को आम इंट्रोडक्शन एमती प्रश्न पड़ी था। तेज निहाती यहाँ मन पड़ो तार व्यवहार विषय में जाना पड़ो, तेज जा आम निश्चित एग्जाम भल हम। तेज एमध्य आपण केमिति भिडियो तेज निहाती मतामत देवे। भिडियो जी भल होती तेज निहाती भिडियो को शेयर करेंगे और आम चैनल को जब प्रथम थर पर आते तेज चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। धन्यवाद।